क्लास 9 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म्स के मेनली द रीजंस फॉर व्हाई द डिफॉरेस्टेशन हैज स्टार्टेड. So we have already started this chapter in the last previous classes. So today we are going to discuss about the reasons behind the deforestations. So we will move ahead. We have already discussed the grocery important topics. What that is the word meaning we have already discussed in the previous class. And we have started the reasons also for deforestations. We have done deforestation for growing crops, that why the Britishers they have cut down the forest because they need food for their own countries, and because they are not getting forest, they are not providing anything. They think that they are just wastage of land. So it's better the land should be the land should be used for cultivations. In that case they will get the revenue as well as the crops. So they started deforestation, cutting down the forest for their crops purpose, and that is also required for their own country. And next is also for the industrial uses, because the industry which need raw materials for the growing, for making the food products, so they need raw materials. So for all that reasons, growing crops, they started deforesting the industry, that was the forest area. Now we will move to the deforestation for industrial uses. So we have discussed the first topic, deforestation for growing crops. Now the next reasons for the deforestation was that deforestation for industrial uses. So the next reason for deforestation was for industrial uses. Industrial uses के लिए किस तरह से they have cut down the forest for उनकी अपनी benefits के लिए. Now early 19th centuries, oak forest in England was found that it was vanishing, and it's very quickly. ये जो oak forest थी, forest in England, वो बहुत ज़्यादा जल्द और बहुत ही जल्द धीरे धीरे finish हो रही थी. Now this posed a scarcity of timber supply for the Royal Navy. That was a serious matter. Scarcity means खत्म होने के लिए. तो ये बहुत ही serious matters था किसके लिए? For the Royal Navy, because the Navy needs ship for regular patrolling. So English ship could be made without a regular supply of strong and durable timbers. So that was how that England, that Navy will patrol without ships. So England ships need, and that ships be made with the regular strong durable timbers. जो strong भी हो, उनको supply भी मिलते रहे regularly, क्योंकि then it can be made. तो इसलिए it could be made without, that cannot be made without. यहाँ पे could be made, यहाँ पे could not be made without regular supply of strong and durable timbers. या sentence में यहाँ पे एक mistake है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे इसको could not be made, तो यहाँ पे वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उनके पास रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर्स नहीं होगा तो शिप कैन नॉट बी मेड. ठीक है ना, कुड नॉट बी मेड. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन imperial powers without ships. So how could the country and how the navy will maintain and patrol? So it is without ships they cannot do anything. So that is a serious matter for them. So by that it was saying that by the 1820s a search team was being sent in India to find out the similar types of, and that was tree, the forest resources. They discovered in India also that there is a type of availabilities that was same just like an oak. In England that was an oak, but in India it was a timber. So within a decade, tree was being cut down on a large scale and huge quantities of timber were being exported from India. So when the team find out that the timber is the same quality of tree, that same as oak, and from that we can make strong and durable ships which can be made. Now a new demand was created from 1950s when railway were expanded. Now it has found again a new way.
that 1950s railway started expanding slowly. It was already started, but it was expanding. बहुत ज़्यादा expand होना शुरू हो गया था. तो railway were again needed for colonial trades and for quick movement of imperial troops also. तो यहाँ पे जो रेलवेज है इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो ट्रेडिंग बिजनेस ईजिली कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन में ईजिली हो जाएगा. दूसरी जो उनकी खुद की अपनी जो ट्रॉप्स है, जो सोल्जर्स है, दे कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली. सो वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल टू रन द लोकोमोटिव. तो यहाँ पे वुड इज ऑल दैट वॉज वुड मीन्स फ्रॉम फॉरेस्ट. तो वुड इज यूज एज अ फ्यूल. उसको फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता था टू रन द ट्रेन, दैट वॉज इंजन. एंड टू ले रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक को भी स्ट्रेट और एकदम टैकल रखने के लिए दैट वाज नीडेड अ स्लीपर. जो स्लीपर जो उन दोनों ट्रैक को, उस लाइन को, दोनों को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं. तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था जब ग्लोसरी डिस्कस कर रहे थे. तो यहाँ पे जो स्लीपर्स है, तो जो ये जो दो लाइन रेलवे लाइन की ट्रैक को जो होल्ड करके रखते हैं, अर्लियर इट वाज मेड बाय वुड, नाउ इट इज मेड बाय कॉन्क्रीट्स एंड सीमेंट्स के थ्रू उसको बनाया जाता है. तो स्लीपर इज ऑल्सो एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर, दोनों को होल्ड करने के लिए. तो इसके लिए भी क्या चाहिए, वुड चाहिए. दैट इज फ्रॉम वेयर इट विल कम, दैट इज ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेयर, from forest only. Each miles of railway tracks required 1760 to 2000 sleepers. तो imagine 1 mile of railway track, 1 miles के लिए कम से कम minimum 1760 to around 2000 sleepers required. तो इसके लिए मतलब कितने ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज को कट करना पड़ेगा, ट्रीज को कट करना पड़ेगा. तो ये चीज़ें जहाँ पे डेवलपमेंट हम कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमने अपने ही फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय भी किया. नाउ फ्रॉम 1860s ऑनवर्ड द रेलवे नेटवर्क रैपिडली एक्सपैंडेड ऑल्सो. ना उसके बाद 1860s में ये और ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हुआ. सो अबाउट 25,000 to 500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक लेड बाय 1890s के अंदर इतना लंबा और ट्रैक बनाया गया, 25,500 किलोमीटर्स. इसे और इंक्लूड किया गया, मीन्स इसके लिए एक्स्ट्रा और वुड यूज़ किया गया. फिर 1946 में रेलवे लाइन हैड इंक्रीज ओवर दिस मच ऑफ kilometers, that was 7,65,000 kilometers. IV international 7,065,000 kilometers. तो इतना ज़्यादा, तो जितना ज़्यादा हम डेवलप कर रहे हैं अच्छी बात है, बट सेम एट द सेम टाइम देयर इज़ नो अल्टरनेटिव. क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस रेलवे ट्रैक्स को होल्ड करने के लिए इन द सेम ट्रैक को, तो वी आर नीडिंग स्लीपर, वी आर यूजिंग द स्लीपर्स एंड स्लीपर्स आर कमिंग फ्रॉम वुड ओनली. सो एज द रेलवे ट्रैक्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, तो जितना ज़्यादा रेलवे ट्रैक स्प्रेड किया गया पूरे इंडिया में, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज वे कट डाउन, तो उतना ही ट्रीज भी कट किया गया. ऑब्वियसली स्लीपर्स चाहिए to hold the railway tracks. So in as early as 1850s, in the Madras presidencies alone, तो मद्रास cities में alone देखा गया 35,000 trees being cut. That was annually, fields annually for sleepers. इतना चाहिए annually, हर साल 35,000 trees is required. That was in the Madras presidencies, that was Madras cities में. The government gave contract to individuals. अब गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल्स को कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया. द रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज ऑफ टिम्बर, कि कौन जितना टिम्बर्स हमें सप्लाई करेगा. तो टिम्बर्स क्यों चाहिए था, टिम्बर्स चाहिए था उनको शिप बनाने के लिए. सो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगिन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली. तो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो इनको कुछ नहीं समझ में आया कि हमें सिर्फ उनको अपने प्रॉफिट, अपने पैसे से मतलब है. तो इन लोगों ने भी क्या किया, दे हैव कट डाउन द ट्रीज विदाउट थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. सो दे हैव कट डाउन इनडिस्क्रिमिनेटली, कहीं पर भी कुछ भी कैसे भी मिला वो काटते गए. द फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक रैपिडली स्टार्टेड डिसअपियरिंग. तो धीरे धीरे देखा गया जो फॉरेस्ट थी रेलवेज के आसपास ट्रैक्स लाइन्स के, वो धीरे धीरे, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स भी इट वॉज मेड इन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट ऑल्सो. तो बाद में धीरे धीरे जो रेलवे ट्रैक्स जहाँ से मूव कर रही थी, तो साइड्स में जो प्लांट्स एंड ट्रीज फॉरेस्ट्स थे वो धीरे धीरे डिसअपियर्स होने लगे, ख़त्म होने लगे, और रेलवे ट्रैक्स सिर्फ अलोन दिखने लगा. तो इसी तरह से फॉरेस्ट
तो क्या हो गया, धीरे धीरे इतना ज़्यादा फॉरेस्ट जो है, वी हैव कट डाउन द ट्रीज, इट मीन्स वी हैव डिफॉरेस्ट, तो हमने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन कर दिया। धीरे धीरे काटते काटते फॉरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फिर नेक्स्ट रीजन आता है डिफॉरेस्टेशन फॉर प्लांटेशंस ऑल्सो। तो प्लांटेशन मीन्स प्लांटिंग क्रॉप्स इन अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पे लार्ज एरिया में मेनली क्या यूज़ करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर के, इस तरह से किया जाता। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया, स्टेट वाइज किया जाता। टी एंड कॉफ़ी, रबर प्लांटेशंस, इवन इन द साउथ इफ वी गो वी विल सी द बनाना ट्रीज ऑल्सो बिन प्लांटेड। तो प्लांटेशंस तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज, कौन से स्टेट में चीज़ है दे आर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ प्लांटेशंस। सो अगेन यहाँ पे प्लांटेशंस के लिए भी दे कट डाउन द फॉरेस्ट एरिया बिकॉज टी, कॉफ़ी, रबर, ये चीज़ें कितने चाहिए, इट इज़ अगेन नीडेड फॉर द यूरोपियन कंट्रीज। तो अनदर रीजन फॉर क्लियरिंग लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट टू रिक्लेम कल्टिवेशंस। तो कल्टिवेशंस को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने टी, कॉफ़ी प्लांटेशंस लगाने के लिए एंड द डिमांड्स, जो यूरोपियन कंपनीज एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की डिमांड्स बढ़ रही थी, उनको सप्लाई करने के लिए, इस चीज़ों को ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया गया। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द इंडियन फॉरेस्ट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया एंड इवन गेव वास्ट एरिया टू इट्स यूरोपियन प्लांटर एट अ वेरी लो प्राइस। साथ साथ इन्होंने अपने यूरोपियन प्लांटर्स को भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बहुत ही कम पैसे में, सो दैट दे कैन ग्रो क्रॉप्स। इंडियंस को नहीं दिया, अपने यूरोपियन प्लांटर्स को ही दिया। Now this area were enclosed and cleared forests and planted with tea, coffee and rubber. और फिर उस एरिया को उन्होंने इनक्लोज कर दिया, पूरा कवर अप, so that the local people should not enter into that areas, and they cut down the forest area and make the area for the cultivations of tea, coffee and rubber. तो इसी तरह से they started cultivations. तो फिर से किसकी प्रॉब्लम्स हुई, फॉरेस्ट की, they cut down the forest area. फिर नेक्स्ट, हाउ डिड कमर्शियल फॉरेस्ट्री बिगन इन इंडिया। तो ये चीज़ें, तो ये न्यू टॉपिक्स हो गए। तो हम लोगों ने लास्टली अभी जो मोस्टली डिस्कस किया कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिफॉरेस्टेशंस। सो फर्स्ट वन वी हैव सीन द रीजन बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन वाज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कि उनको क्रॉप्स चाहिए थी, दैट वाज शुगर, जूट, वीट, कॉटन्स। ये किस लिए चाहिए थे, एक तो उनको अपने कंट्री की इंडस्ट्रियल एरिया को चाहिए था एज अ रॉ मटेरियल्स। तो इसी तरह से दैट वाज बीन कट डाउन। इवन जहाँ पे उनको लगा, दूसरी रीजंस ये भी थी कि जहाँ पे उनको लगा कि द फॉरेस्ट दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग, सो इट बेटर दैट इट शुड बी कट डाउन एंड यूज दैट एरिया फॉर कल्टिवेशंस। सो इन दैट कल्टिवेशन विल गिव अस agriculture's output as well as agriculture's revenue also, that was tax, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टैक्स होगा वो भी मिलेगा। तो ये फ़ायदा हो गया उनको। फिर उसके बाद इन्होंने डिफॉरेस्टेशन वापस और बढ़ाया गया ड्यू टू इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। फिर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए साथ साथ इंडस्ट्रियल यूजेस के साथ उन्होंने यूज़, जैसे फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर सोल्जर्स फॉर वन प्लेस टू वन अनदर प्लेस दे नीड रेलवे। तो रेलवे को क्या चाहिए था, स्लीपर्स, ट्रैक्स को कंट्रोल करने के, होल्ड करने के लिए उनको स्लीपर्स चाहिए था। तो स्लीपर्स के लिए उनको फॉरेस्ट एरिया चाहिए था। फिर उनके खुद के रॉयल नेवी जो थे, उनको नेवी, उनकी खुद की अपनी कंट्री में ओक फॉरेस्ट जो था डिसअपियर होने लगा, ख़त्म होने लगा। तो उन्होंने इंडिया में टिम्बर फाइंड आउट किया एंड द सर्च टीम जो दे फाइंड आउट, जो उन्होंने सर्च टीम इंडिया में भेजा, तो दे फाइंड आउट द सिमिलर प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ ट्रीज इन इंडिया इज अवेलेबल एज टिम्बर, वो यूज़ किया जा सकता है। फिर इसके लिए उन्होंने, फिर ये चीज़ें के लिए फिर वुड एज अ स्लीपर यूज़ किया गया। तो रेलवे लाइन को और रेलवे को जितना स्प्रेड किया उतना ज़्यादा उन्होंने क्या किया, दे कट डाउन द ट्रीज। फिर बाद में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया इंडियंस को दैट हाउ मच दे विल गिव द ट्रीज दे विल गेट द मनी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे दे कट डाउन इनडिस्क्रिमिनेटली, बिगर सोचे समझे उन्होंने ट्रीज को कट करना शुरू कर दिया। फिर डिफॉरेस्टेशन फॉर प्लांटेशंस ऑल्सो, कि ग्रोइंग क्रॉप्स में से जैसे आ गया टी, कॉफ़ी, रबर, ये उनके खुद की कंट्रीज़ के लोगों को चाहिए, उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी। तो इसी तरह से दे कट डाउन द फॉरेस्ट एरिया। तो इसी तरह से उन्होंने अपने लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट दे दी टू ग्रो दिस प्लांटेशंस क्रॉप्स। तो इसी तरह से ये रीजंस था डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ डिड कमर्शियल फॉरेस्ट्री बिगन इन इंडिया, कि जो कमर्शियल फॉरेस्ट्री है इंडिया के अंदर कैसे स्टार्टअप हुई. Now we have read that from the British needed forest to obtain timbers for building ships and railway. कि इनका मेनली सबसे इम्पोर्टेंस था कि वो शिप बनाए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि नेवी जो चाहिए उनको, रॉयल नेवी को शिप चाहिए पेट्रोलिंग करने के, राउंड आउट करने के लिए, एंड टू कंट्रोल फ्रॉम द जो दैट वाज वी कैन से एनिमीज से बचने के लिए भी. तो एंड रेलवेज फॉर ट्रेड एंड पर्पस के लिए भी रेलवे चाहिए, एंड फॉर मूविंग ऑफ द सोल्जर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. They were worried that the use of forest by local people and the reckless cutting of trees by traders would destroy the forest. So that is also one of the reasons that they started thinking about that they needed wood for building ships and railways. If the local people of our country, of Indian peoples, if they cut down the forest without thinking that which tree is important, they will use for the mainly for fuel purpose. So they are not worried about anything. So they will cut down recklessly without thinking कि बगैर सोचे समझे वो सारा पेड़ वो जो काट देंगे और वो जो है ख़त्म होने शुरू हो जाएगा. तो इसके लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट्स को बुलाया. दे इन्वाइटेड अ जर्मन फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रैंडिश. तो डाइट्रिच ब्रैंडिश को जो उनको बुलाया गया इंडिया में, सो दैट फॉर गिविंग एडवाइस and appointed him for the first Inspector General of Forest in India. So he became the first Inspector General of Forest in India. तो ये डाइट्रिच ब्रैंडिश जो थे इंडिया के कौन से थे, ये फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट. तो जहाँ पे ये क्या करेंगे, वो एडवाइस देंगे फॉरेस्ट में क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, हमें कैसे बचाना है फॉरेस्ट को, for their own purpose, not for the sake of the environment, but for their own purpose, that they will get ship and railway regularly. So Dietrich Brandish feel that a suitable system had to be introduced, कि एक suitable जो है system introduce करना चाहिए. To manage the forest and people had to be trained in conservation science. तो उन्होंने सबसे पहले उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगा कि यहाँ पे एक सिस्टम यूज़ करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो एक सिस्टम बनाना चाहिए, और उसमें सबसे पहले हमें मैनेज करना है फॉरेस्ट को, कि कैसे हम फॉरेस्ट को मैनेज कर सकें, ये चीज़ें इस पर ध्यान दें. फिर दूसरी चीज़ है कि हम पीपल्स जो है, इन पीपल्स को हमें क्या करना चाहिए, जो लोकल पीपल्स है जो वहाँ फॉरेस्ट से दे आर कनेक्टेड एंड दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट, उन्हें कंजर्वेशन के बारे में सिखाया जाए कि कंजर्वेशन क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. तो ट्रेन कंजर्वेशन फॉर साइंस, तो इन कंजर्वेशन साइंस की हमें बचाव कैसे करें, ये चीज़ें पे उन्होंने सबसे पहले फोकस किया कि हमें ये चीज़ें करना है. ना दिस सिस्टम वुड नीडेड लीगल ऑथराइजेशंस. तो ये सडनली वो अपने आप तो नहीं करेंगे. So for this system, it needed a legal authorization, means a rules and regulations should be formed. कि यहाँ पे उसके लिए rules बनाया जाए, उसको रेगुलेट करने के लिए, फॉर्मेशंस करने के लिए, और गवर्नमेंट जो है उसको रूल्स को लीगलाइज किया जाए, तो अथॉरिटी होनी चाहिए. तो रूल्स हैड टू बी फ्रेम्ड फॉर यूजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो उन्होंने कहा कि रूल्स बनाए, सबसे पहले फ्रेम अप करें, फ्रेम करने के बाद उस रूल्स को फॉलो किया जाए कि हमें फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है. तो ये चीज़ें उन्होंने बताई. फिर बाद में उन्होंने फोकस किया कि ग्रेजिंग एंड क्लियरिंग ऑफ ट्रीज हैड टू बी रेस्ट्रिक्टेड. कि जो लोकल पीपल है वो यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल पीपल्स वो फॉरेस्ट एरिया में एंटर होते हैं, किस लिए, फॉर ग्रेजिंग पर्पस, अपने जानवरों को लेके ग्रेज करवाने के लिए आते हैं. फिर अपने घर के लिए, फ्यूल्स के लिए उनको ट्रीज चाहिए होता है, तो दे कट डाउन, तो क्लियरिंग ऑफ ट्रीज वो कट डाउन कर लेते हैं. एंड हैड टू, तो ये चीज़ों को क्या करना चाहिए, इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि द पीपल, लोकल पीपल शुड नॉट एंटर फॉर ग्रेजिंग एंड फॉर क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, उन्हें नहीं आना चाहिए. सो दैट फॉरेस्ट कुड बी प्रिजर्व्ड. तब जाके तो ये दोनों का एंट्री बंद हो जाएगा, तो हम फॉरेस्ट को क्या करेंगे, कुड बी प्रिजर्व, तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. क्या बचा रहे हैं हम फॉरेस्ट में, यहाँ पे प्रिजर्व फॉर टिम्बर्स प्रोडक्शन. तो वहाँ पे हम टिम्बर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, टिम्बर्स को बचा सकते हैं.
तो वापस से यहाँ पे रिमाइंड कर रही हूँ कि टिम्बर्स जो है यहाँ पे इट इज़ नीडेड फॉर देम ओनली, फॉर द ब्रिटिशर्स, फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज। तो यहाँ पे ये इंडियंस को मना करे, ग्रेजिंग नहीं करना है, कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं करना है अपने पर्पस के लिए, बट ये कट डाउन करेंगे, ये यूज़ करेंगे फॉरेस्ट एरियाज को, ये यूज़ करेंगे टिम्बर्स को और अपनी यूज़ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ये उसको प्रिजर्व करेंगे, नॉट फॉर द सेक ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये इनका मोटिव था, इनका इंटेंशन था, और जिसके लिए उन्होंने डायट्रिच ब्रैंडिश को अपॉइंट किया एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बिगिनिंग ऑफ फॉरेस्ट रूल्स एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। तो डायट्रिच ब्रैंडिश आने के बाद उन्होंने शुरुआत की थी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया था, उन्होंने स्टार्टअप किया था। तो ये टॉपिक जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।